in series combination, it is like the parallel of resistor, and parallel combination is like series of resistors, so directly added. Series में लगाने पे कैपेसिटेंस कम होता है, parallel में लगाने पे कैपेसिटेंस increase होता है. So circuits having parallel plane of symmetry, that was the first case. अगर किसी circuit में plane of symmetry like this was originally attached here. So have you shared your screen? Oh, not yet. Wait. Yes. So this is the last lecture notes, just to remain connected, because it is the same connected topic. Yes, electrostatic potential or capacitors में हम कर रहे थे combination of capacitors, the different mixed special type of circuit. First was circuits having plane of symmetry. So अगर किसी circuit में plane of symmetry है, then there are two type of plane of symmetry. One is vertical plane of symmetry, which passes perpendicularly to the midpoint. Logic is that each point lying on this plane of symmetry is at same potential. So every point is same potential, which means this junction which is connected here, even if we open it, there will not be any current passing through these 2 points. The 2 points marked as, let's say, X and Y. One on this junction, another on the lower side branch. They are the same potential. Same potential के बीच में charge flow नहीं होगा, current flow नहीं होगा, so we can open it. अब open कर लेंगे तो circuit simplify हो जाएगा, ऊपर series and parallel, that we can solve. Second example क्या था, अगर किसी plane of symmetry पे capacitor lie करे, like this was the second example. If there is a plane of symmetry, and plane of symmetry, the whole capacitor lies on it. The each point on the plane of symmetry is at same potential. So X, Y, and Z. All 3 points are at same potential. Same potential means potential difference 0. Potential difference 0 means it can be removed because it does not have any charge. Charge will be 0. We can remove these two capacitors from the circuit. Right? इन दोनों को circuit से हटा देंगे, and then we get this case. So it will be all 4 in series. First branch, second branch. So actual circuit बना लेते हैं for your reference. This was the actual circuit, but these two capacitors are of no use because they do not draw any charge from the circuit. ठीक है, so ये दोनों का combination था, junction भी है और capacitor भी है. Capacitor को हटा देंगे, junction को ऊपर नीचे open करके, and then we can find its equivalent. The next case was horizontal plane of symmetry, which is also called as folding circuit. So in any horizontal plane of symmetry means this plane of symmetry is parallel to the battery. The battery is connected between AB, so this is between AB parallel to it. Now in this case, the plane of symmetry is not at same potential, but अगर आप plane of symmetry को एक mirror assume कर रहे हैं, then mirror image points are at same potential. These two are at same potential. These two are also at same potential. And the points which are at same potential, they can be assumed as same point in the circuit. So both are taken as 1 and 1, the top, and similarly 2 and 2. Same potential point when behaving as the same point in the circuit, they can be considered as same point. 1 and 1, बीच में 2 point और थे, there are these 2 points, we put them 3 and 4. So this is called numbering method. हम किसी circuit में पहले वो points find out करते हैं जिनका potential same है, उनको same point assume करके, and then we locate all the other points, and then we draw the circuit. जैसे सर्किट को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से पॉइंट चाहिए, एंड्स पे लेंगे ए और बी, देन 1 and 2, 3 and 4, ए बी 1 and 2, 3 and 4, and then we locate each capacitor one by one, and then we find the actual connection of the circuit. ठीक है, तो उसको आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, जिन लोगों ने क्लास मिस की थी. I'm just quickly revising. This is another example of horizontal plane of symmetry. Horizontal plane of symmetry के दोनों तरफ का potential same होता है mirror image का, so these two are at same potential and these two are at same potential. Same potential means potential difference 0, potential difference 0, charge 0, so charge will become 0. These two capacitors can again be removed from the circuit. Correct? इन दोनों को हम सर्किट से हटा के डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तरीका ये, और दूसरा तरीका था कि हम इसका एक नया सर्किट बना सकते हैं. This was the first method because same potential difference 0.
we can remove those two capacitors which does not have any charge. Second method, numbering method. A और B ends पे थे, उनको हमने A B ends पे ले लिया, and then 1 and 2 in between. Draw all the circuit, all the capacitors. These two capacitors are short circuited. तो चाहे ऐसे निकालो या इन दोनों को हटा के निकालोगे तो भी C/3 and C/3 in parallel that become 2C/3. Circuits having extra connecting wire. सर्किट्स में अगर नॉर्मल सर्किट में एक्स्ट्रा वायर लगा देते हैं तो जिन पॉइंट्स को वायर से कनेक्ट कर देंगे वो सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे. These two points are connected, उनका पोटेंशियल सेम, so they are treated as same point 1. ये B इधर से कनेक्टेड है, these two also become at same potential B and B. Right? पहले समझ आ रहा है? थोड़ा क्विकली फास्ट है, but you will have to just figure out the method. आप डिटेल में पढ़ लेना नोट से या वीडियो से, या आपने पढ़ लिया तो और अच्छी बात है. A और B को हम टर्मिनल्स पे रखते हैं. बीच के पॉइंट्स कौन से बचे? 1. So there is a one extra point we will take at the center, and then we draw the circuit. A to 1, A to 1, 1 to B. Okay, this is again a similar example, and then there was combination of parallel plates connected together by wire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Each plate has same area, and separation between any two consecutive plate is D. कैपेसिटर बनता है दो प्लेट्स के बीच में गैप में. सो दिस ईच कैपेसिटर इज ऑफ कैपेसिटेंस C. टोटल 5 कैपेसिटर्स है, and where each capacitance is epsilon naught A by D. 1 is connected to 4 and 6, and that is point P. So point P is same as point 1, 4 and 6. Similarly, on the other side, 2 and 5 is same as Q. 2 and 5 is same as Q. बच गया एक 3. 3 को हम बीच में रख लेंगे. अब ये 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर, so 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर ऊपर, 2 और 3 के बीच में, 2 is here, 3 is here, another capacitor, 3 to 4, 3 to 4, then 4 to 5 and 5 to 6. Each gap means one capacitor, और उस कैपेसिटर की हम लोकेशन फाइंड आउट करके we will connect in this circuit. We will redraw the circuit and then find the equivalent capacitors using that series parallel form. This was the second example. Plate number 1, 2, 3, 4, 5. 1 is connected to point P, 2 and 4 connected together, and 3 and 5 connected to Q. So P को तो केवल 1 लेंगे, Q को 3 and 5, और बीच में 2 and 4 are connected together. Now we'll draw the circuit. 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 5. So this become the overall circuit. एक ये मैंने करने को दिया था, अगर नहीं किया तो प्लीज इसको भी कर लेते हैं. यस सर इसका आंसर 3C है ना? 1, 4 and 7. This is connected to X. 1, 4 and 7 is same as X. Y is 3 and 6. Y is 3 and 6. एक 2 अलग है and 5 is different. 2 is connected here और एक बीच में आ गया 5. 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस सॉरी, 1 और 2 के बीच में C. 2 to 3, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, and 6 to 7. This is the actual circuit. Right? So equivalent कितना आएगा? C and C in series become C by 2. C and C in series become C by 2. C by 2, C, C by 2 and C. All are in parallel. उनको directly add कर लेंगे, आ जाएगा 3C. Yes, answer is 3C. और C को हम epsilon naught A by D के फॉर्म में लिख सकते हैं. Right? Yes sir. So these were the parallel plate capacitor circuit, combination of parallel plate.
अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्किट्स, न्यू। तो इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, वो भी देख लेते हैं। वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस, फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। This question was asked in JEE Mains. Find the charge on each plate in the following arrangement. One, two, three, four, five, six. One is connected to 3 and is connected to 6. 2 is connected to 5. And between A and B, there is a battery connected. So if a battery or potential V is connected, calculate the charge on each plate. Right? Each plate has same area A and distance between any two plate is D. Right? Circuit बनाते हैं पहले. A is connected to which point? 1, 3 and 6. A is connected to 1, 3 and 6. Aryan. Aryan, how are you? बीच में आ गया 4. 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस है. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है आ रही है सर. Aryan. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. अच्छा सॉरी, 2 और 5 कनेक्टेड थे, ये 1, 3 और 6 है. So 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 है. Correct? That is the arrangement. Right? Check करना arrangement सही है. Yes, sir. अब इसमें हम लगा देते हैं बैटरी. Now we connect a battery across this combination while each capacitor has same capacitance of C. So on each of these जितने भी ये पैरेलल में, सब में सेम पोटेंशियल होगा V, सब में सेम चार्ज आएगा. पॉजिटिव पे CV और नेगेटिव साइड पे माइनस CV. CV माइनस CV, CV एंड माइनस CV. और जो बीच में दो सीरीज में लगे हुए, इनमें क्या करते हैं, सीरीज में चार्ज तो सेम होता है बट कितना, C इक्विवेलेंट इनटू V. सो इसका जो चार्ज आएगा वो C and C in series become C/2, so CV/2. ये आ गया चार्ज. अब हमें इसमें देखना है कि प्लेट्स पे कौन से प्लेट पे कौन सा वाला चार्ज था. पॉजिटिव ये प्लेट 1 पे, आउटसाइड में चार्ज नहीं होता. 1 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो 1 के अंदर वाले साइड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. प्लेट 1, 1 to 2, दिस इज Q. Q इज CV. हमने Q को ले लिया CV. इसमें कोई भी ले लो, एक प्लेट 1 और 2 के बीच में, दिस इज सपोज प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2. अब 2 is connected to negative. पॉजिटिव अगर एक साइड है तो दूसरे साइड पे इक्वल और अपोजिट भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. एंड अब आता है 2 और 3 पे. 2 is here
3 is here. So 2 वाले प्लेट पे कितना आएगा, ये बिकॉज नेगेटिव है, इसमें दूसरी तरफ भी नेगेटिव होगा, और 3 पे आ जाएगा फिर पॉजिटिव अकॉर्डिंगली. करेक्ट. 3 के दूसरी साइड पे कितना आएगा, ये भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है. द प्लेट्स विच आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव. अब इसकी दूसरी तरफ पे ये 3 और 4 वाला है. सो दिस इज 3, दिस इज 4. इस पे चार्ज आएगा CV/2. सो दैट चार्ज इज Q/2. 4 पे -Q/2. 4 के दूसरे साइड पे भी -Q/2. एक 4 ये वाला, एक 4 इधर वाला है, और 5 पे भी +Q/2. आमने सामने वाली प्लेट पे हमेशा चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है. थोड़ा समझ आ रहा है, फिर से समझाऊं? सर ये समझ भी नहीं आया चार्ज वाला. चार्ज वाला समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो फिर से हम करते हैं एक बार पूरा डिस्कशन. जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्लियर. जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा बैटरी की वजह से. ये तो ऑब्वियस है. यस सर. जो सबसे बाहर वाली प्लेट होती है, अर्थिंग की वजह से सबसे बाहर की साइड तो चार्ज कभी आएगा. क्लियर. 1 is positively connected to positive terminal, so 1 पे चार्ज आएगा पॉजिटिव अंदर की तरफ. अब हम ये बगल वाले सर्किट डायग्राम में ढूंढते हैं कि ये प्लेट है कौन सी. हमने 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर बनाया था. दिस वाज सपोज द कैपेसिटर बिटवीन 1 and 2. करेक्ट. इस पे चार्ज कितना है प्लेट 1 पे, CV. यस सर. तो ये आ गया CV. हमने तो क्यों लिख लिया, assume Q is equal to CV. अब किसी भी पैरेलल प्लेट पे आमने सामने वाले पे हमेशा चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है. ये आ गया -Q. 2 is connected to negative terminal. So 2 का जो दूसरा टर्मिनल होगा वो 2 और 3 के बीच वाला. So this is 2 and this is 3. इस पर 2 पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव. सो क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये दोनों तरफ से चार्ज होगा, क्योंकि इसका एक साइड बना रहा है 1 के साथ और दूसरा साइड बना रहा है 3 के साथ कैपेसिटर. There are 2 कैपेसिटर फाउंड बाय प्लेट 2. समझ आ रहा है ये? यस सर. ये ऊपर वाला -Q 1 के साथ है, नीचे वाला -Q 3 के साथ है. सो ये 2 और ये 3 पे भी आएगा +CV. -Q आएगा तो सामने वाले पे +Q होना चाहिए. अब 3 के जो दूसरे साइड है वो यहाँ पे ढूंढो कहाँ है. दिस इज 3 to 4 and then 4 to 5. Q/2. इसमें जो 3 वाला जो प्लेट है वो कितना है, C और C का कॉम्बिनेशन. इस ब्रांच में चार्ज आएगा केवल Q/2. So charge on the other side of 3 plate is Q/2. Right? यस सर. ये Q/2 सामने वाले पे कितना इंड्यूस करेगा, -Q/2. -Q/2. अब 4 का जो दूसरा अदर साइड प्लेट है, एक तो 4 यहाँ पर है, दूसरा 4 कहाँ पर होगा सर कनेक्टेड टू 5 सर. ये वाला इस पे +Q/2. +Q/2. इधर वाला आ गया ये ना, क्योंकि इस प्लेट 4 को तो हमने किसी से कनेक्ट किया नहीं है, ना तो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ना ही ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. सो क्वाइट ऑब्वियसली इसमें चार्ज 0 ही होगा. Plate 4 is not connected to positive terminal, not connected to negative terminal, so there won't be any charge on plate 4. Right? यस सर. अब 4 और 5 में कितना चार्ज आएगा, 5 is connected to negative, +Q/2 है तो सामने वाले पे आ जाएगा -Q/2. और 5 के अपोजिट साइड में -Q. This will induce same charge Q on the plate 6. वो आप डायग्राम में भी ढेर से ढूंढ सकते हो. 5 और 6, maybe this plate is 5 and this plate is 6. 6 is positive, 5 is negative. So plate 1 पे total charge कितना आया? What is the charge on plate 1? सर +Q. CV. यस सर. प्लेट 1 पे चार्ज +Q टोटल. प्लेट 2 पे चार्ज कितना आया, -Q ऊपर का -Q नीचे का, यानी -2Q. प्लेट 3 पे कितना चार्ज आया, Q/2.
3q/2, इसको अलग से एक लिख लेते हैं कहीं। समझ में आ रहा है ये कैसे हमने चार्ज फाइंड आउट किया? बिकॉज दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस, और वो ऐसे ही कुछ सीक्वेंस वाइज चार्ज लिखे थे, प्लेट 1 पे q। तो अगर उसको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं तो पहले प्लेट 1 पे चार्ज आएगा +q, प्लेट 2 पे चार्ज -2q, प्लेट 3 पे चार्ज +3q/2, प्लेट 4 पे चार्ज 0, प्लेट 5 पे चार्ज -3q/2, और प्लेट 6 पे चार्ज +q. These are the charge on the plate respectively, where q is equal to cv. Got it? बेटा ये चार्ज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. और लोगों को भी पूछने दो। यस अमन, अमन इज इट क्लियर? अमन, Yes, 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 sir. So मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटा अभी आई आवाज। हाँ यस ठीक है, पहले नहीं आ ठीक है, रही। चलो ओके। सो ये हो गया पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्किट, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। सो जो भी हो थर्ड और फोर्थ स्पेशल सर्किट में। सर एक सन पीछे वाले स्लाइड पे चल जाओ, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। एक मिनट, जस्ट चेकिंग दी। हाँ, इसमें थोड़ा मैंने लिखा नहीं है, बट आप समझ लेना, अपने आप नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो, टेक योर टाइम। हमने कैसे डिसाइड किया चार्जेस? पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, उस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल निकाले, उस ब्रांच में चार्ज, एंड दैट चार्ज इज नाउ डिवाइडेड ऑन द ईच सरफेस ऑफ प्लेट। टोटल चार्ज के लिए ऊपर और नीचे दोनों वाले को हम ऐड कर लेंगे। डन? यस सर। थर्ड इज ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। एक करके देखते हैं। ओपन सर्किट का मतलब सर्किट में कोई ऐसा कैपेसिटर है जो एक एंड पे ओपन है, नथिंग इज कनेक्टेड। कविन, यस सर। बेटा हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, मैंने 11th में वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया है, सो यू कैन अटेंड दिस वीकेंड क्लास इफ यू वांट टू understand the differentiation integration. Love those anyone who wants to learn and revise. In class 11 batch, I have started the differentiation integration, basic maths basically. Anyone who wants to revise it. अच्छा सॉरी, इसको फिर हम CD हटा देते हैं। Let's make it X and Y. ये कुछ सर्किट के 4 टर्मिनल है। अब जब हम बैटरी लगाएंगे तो केवल 2 टर्मिनल में लगाएंगे। We'll connect battery only across 2 terminals. If suppose we have to find capacitance across AB, मतलब हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी। Capacitance across AB, equivalent capacitance between A and B. So अब जो भी सर्किट से चार्ज आएगा इस बैटरी से, that will go into the branch, but वो इधर आगे इन दोनों में इंटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें चार्ज गया तो उस चार्ज के लिए आगे कोई पाथ कंप्लीटेड नहीं। There is no complete path for that charge to move further. और चार्ज जाके अपने आप गायब नहीं हो सकता। There cannot be a charge cannot be destroyed. तो इसका मतलब इस वाले ब्रांचेस में चार्ज जाएगा नहीं, बिकॉज इट इज ओपन एट द अदर एंड। सेम विल बी फॉर रेजिस्टर। अगर रेजिस्टर एक एंड से कनेक्ट करते हैं, दूसरे एंड पे कनेक्ट नहीं किया, देयर वोंट बी एनी करंट गोइंग इनटू दैट रेजिस्टर, राइट? राइट? Yes, sir.
बेटा ये समझ में आ गया कि ये दोनों कैपेसिटर में चार्ज नहीं जाएगा, अगर चार्ज नहीं जाएगा तो हम दोनों को हटा देते हैं। द कैपेसिटर विच डू नॉट हैव एनी चार्ज, उनको हम सर्किट से हटा देते हैं। तो जब हम ए और बी के बीच में कैपेसिटर्स निकाल रहे हैं तो ये एक्स और वाई के साइड वाले जो कैपेसिटर्स हैं वी कैन रिमूव इट। बस इतना आ गया फिर तो ए एंड बी, सी 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 सी, एक्स और आई के आगे वाले सर्किट को हम हटा देंगे, दोस कैपेसिटर्स विल बी रिमूव्ड। अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट निकालो, दिस इज इजी टू सॉल्व। सी 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 ये तीनों सीरीज में। यस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इन दिस सर्किट। फ्रेंड्स, Yes, sir. find the capacitance between A and B. टेन सी बाय थ्री, कितना? 10 C/3। 10 C/3, C आइडेंटिकल इन सीरीज, C/3 आ गया। ये C/3 इधर नीचे वाले C के साथ पैरेलल में, it will be added, तो C this will become 4C/3। कितना आंसर? ओ नहीं, मैंने सीरीज को गलती से ऐड कर दिया, उसका इन्वर्ट करके। मतलब 4C/3 और C सीरीज में होंगे फिर। सीरीज में आ जाएंगे। यस यस यस, कैलकुलेट कितना आएगा ये? So in this there are two terminals which remained open. So in those capacitors there won't be any flow of 4C/10, 4C/10। Okay, 2C/5 मतलब 4C/11 आ रहा है मेरा। सर 4C/11 आ रहा है। 2C/11 आ रहा है, 1/C plus 11/4C, so that means C equivalent is right. यस सर, यस सर। Calculate between A and X. Calculate between A and X. A, B, X and Y 4 terminals थे, पहले A और B में लगाया, मतलब बैटरी वहां पे कनेक्ट करनी है। Now battery is to be connected between A and X. सेम सर्किट, अभी हमने टर्मिनल चेंज कर दिए, ए और एक्स के बीच में। अच्छा, ये तो शायद सेम सर्किट बन गया। बिटवीन ए एंड वाई, नॉट एक्स, बिटवीन ए एंड वाई। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड वाई। Between A and Y we connect a battery. So these two terminals X and Y will be removed. These two capacitors will be removed. बाकी सर्किट सॉल्व कर लेते हैं। What is the capacitance between A and Y? Yes. सो क्या C/3 + C/2 होगा? क्यों?
क्योंकि ये दोनों हट जाएंगे ना सेम पी के। फाइनल आंसर क्या है ये बताओ? किसका? एक्स और उसके बीच में? ए और वाई के बीच में। हाँ सर मेरे हिसाब से C/3 नहीं सॉरी C/2 + C/2 सी होना चाहिए आंसर। हाँ नहीं। एनीवन एल्स? क्या है आंसर आर्यन? सर C/3। C/3 आएगा, राइट। हाँ, ये दोनों हटा देते हैं। अमन कुछ गड़बड़ किया आपने। रिमूव दीज टू। ये दोनों को हटा दिया, फिर क्या हुआ? C एंड C इन सीरीज कितना? C/2। नीचे भी C एंड C इन सीरीज C/2। ये दोनों पैरेलल में C, फिर C एंड C इन सीरीज, दैट बिकम C/3। राइट? यस सर। अमन? तो मैं समझ गया मैं, न्यूमेरिकल मिस्टेक हो गई। सर सेम ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट ही है यार, इसलिए मैंने 4 टर्मिनल दिए थे ओपन सर्किट में। अब ओपन सर्किट में किसी भी सर्किट या किसी भी नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर रहे हो बैटरी, किस पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट कर रहे हो। राइट? सर जब ए और एक्स के बीच में होगा तो फिर तो बस वो easy- सेम प्रीवियस जैसा ही बन जाएगा, वो फर्स्ट के जैसा ही बन जाएगा, ए और बी के जैसा ही बन जाएगा। दैट आंसर विल कम आउट एग्जैक्टली सेम एज ए बी। सर You हाउ can draw the circuit. राइट? ओके, अब शॉर्ट सर्किट का एग्जांपल देख लेते हैं। 4th होगा शायद, मतलब 4th है। राइट, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? If both the terminals of a capacitor are connected together by a wire, right? Yes, find the capacitance between A and B. इसमें एक तो कॉन्सेप्ट वो यूज हो जाएगा कि capacitors connected together by points by wires are at same point. तो ये A, here it will also become A. This is B. This also become B. Points connected by wires are at same potential. तो Right? पहला वाला शॉर्ट सर्किट होगा और दूसरा वाला जैसे नीचे बहुत वाला। सारे शॉर्ट सर्किट है। Let's try to figure out how many of them are short circuit. पहला जो कैपेसिटर है, this is between A and A, this is short circuited. Second one is between A and B, A and B. This one is, third is also between A and B, third is also between A and B. Fourth is also in A and B. और इधर ये किसमें? B और B में। शॉर्ट सर्किट। So those capacitors which are connected, both terminals are connected at the same point, will be considered short circuited and they can also be removed from the circuit. Equivalent आएगा केवल कितना? These three capacitors in parallel, C equivalent will be 3C. सारी बात फिर से बता दो। हाँ बेटा, सारी बात फिर से बता दो। फिर से बताता हूँ। देखो इसमें हमने वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज किया है कि जो पॉइंट्स किसी वायर से कनेक्ट होते हैं, they come at same potential. So these A and A are at same potential, right? Yes. इधर भी वायर से कनेक्टेड A भी A हो गया,
नीचे का पॉइंट ये बी था, ये इधर बी से कनेक्टेड, दिस इज बी, दिस इज बी। सो पॉइंट्स केवल दो ही हैं, ए और बी, और हर एक कैपेसिटर को हम लोकेट करके सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे। इधर ले लिया ए, दूसरी तरफ ले लिया बी। फर्स्ट कैपेसिटर बिटवीन ए एंड ए से स्टार्ट हुआ, ए पे कनेक्ट हो गया, सो दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है, दिस इज शॉर्ट सर्किट। Yes, sir. ऐसे दूसरी तरफ ये बी और बी में कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किट। और फिर ए टू बी, ए टू बी, Okay, sir. आगे समझ। अब ए टू बी में कितने 3 कैपेसिटर आ गया, तीनों पैरेलल में, एक्यूरेट आ गया 3C, Yes, sir. राइट। Understood everyone? Fifth Yes, circuit. sir. Yes, sir. Yes, sir. Fifth circuit, that is Wheatstone Bridge circuit. Wheatstone Bridge क्या होता है? A combination of 5 capacitors or resistors. 1, 2, 3, 4, 5. If there are 5 capacitors or resistors connected such that 4 of them are along the sides of quadrilateral and 5th is along the diagonal. Right? This type of special arrangement is called Wheatstone Bridge. But इसको solve करने के लिए, अब इसमें अगर लग रहा हो कि plane of symmetry है, this is not plane of symmetry because left side and right side capacitance values are different. Same होंगे तो हम plane of symmetry लगा के बीच वाले कैपेसिटर को grab कर सकते हैं, but this is not same on both the side. Left side C1 C2, right side C3 C4. Right? Yes, sir. अब ऐसे सॉल्व करना है सर्किट को कर तो सकते हैं, बट सीरीज पैरेलल से पॉसिबल नहीं है। इसका एक स्पेशल केस होता है, इफ लेफ्ट साइड कैपेसिटेंस रेशियो राइट साइड कैपेसिटेंस रेशियो के इक्वल हो जाए, C1 by C2 is equal to C3 by C4, then the circuit is called balanced Wheatstone bridge. Right? और balanced Wheatstone bridge में क्या होगा? If this is between A and B, in balanced Wheatstone bridge, across the bridge both the points come at same potential, जिसको हम prove करेंगे next chapter में. P and Q are at same potential under this condition of balanced Wheatstone. Right? अगर ये सेम पोटेंशियल पर आ गया मतलब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? पोटेंशियल डिफरेंस 0. पोटेंशियल डिफरेंस 0 का मतलब इसको हम सर्किट से हटा देते हैं. If any capacitor has potential difference 0 means it does not contain any charge. If it does not contain any charge, it is not working in the circuit. Not working in the circuit means this capacitor C5 has no charge and it can be removed from the circuit only under this balancing condition. And it can be removed from the circuit. Right? अब इसको हटा देते हैं तो फिर सर्किट सिंपलीफाई हो जाएगा. फिर ऊपर बचेगा C1 and C3 in series. नीचे वाले ब्रांच में बचेगा C2 and C4 in series. And
then these two branches will be in parallel. बेटा समझ में आ गया ना? चलो उसके एग्जांपल देखते हैं. Wheatstone Bridge. Wheatstone is the name of. सर अगर सर एक डाउट, अगर बैलेंस नहीं होता तो कैसे करते हैं हम? अब भी करेंगे हम, वो भी करेंगे, वो आएगा 8th केस अच्छा. में होगा. बैलेंसिंग में हम इसको हटा नहीं सकते, मतलब बंदा इफ इट इज नॉट बैलेंस देन वी कैन नॉट रिमूव, फिर हमें किसी और मेथड से सर्किट सॉल्व करके निकालना पड़ता है. दैट आल्सो वी विल डू इन वन ऑफ द स्पेशल केसेस. तो इसके कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं Wheatstone Bridge के. एक तो ये सिंपल वाला था, सिंपल वाला एज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल. टू माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड, बीच में 5. Calculate the equivalent capacitance between A and B. So is it a balanced Wheatstone bridge? Yes, Yes, sir. sir. तो बैलेंस इसलिए बीच से इसको हटा देंगे. So first condition we need to check the balancing. Short form में WSB लिख लेते हैं. Wheatstone bridge. And then we remove that 2 microfarad. Sir, 18 by 5. कितना? Sir, 18 upon 5. 3.6. 18 upon 5. Okay. So 3 microfarad, 6 microfarad. These are in series. ऊपर 2 और 4 series में, that is 8 by 6, 4 by 3. So 4 by 3 and 2. क्या किया तुमने? नहीं. With it? Sir, गलती कर दी थोड़ी, एक सेकंड. तो थोड़ी तो गलती होती है. श्रेया, 10 by 3. Yes, sir. आ रहा है 10 by 3 आ रहा है. राइट, तो ये पहला फॉर्म हो गया. सेकेंड फॉर्म दृष्टि. ओके, सेकेंड फॉर्म. अगर अब इसी जो वर्टिकल ब्रिज है इसको हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं. सेकेंड इज वी कीप इट horizontal. Five microfarad, 10 microfarad, 10 microfarad,
20 माइक्रोफैरेड और बीच में सपोज देखिए कुछ 6 माइक्रोफैरेड। सो ये जो सर्किट है ऊपर वाले P और Q को यस दिस 6 माइक्रोफैरेड दिख रहा है ये? अगर नहीं दिखे तो यस हम सर। इसको फिर से ड्रॉ कर सकते हैं इन दैट स्टैंडर्ड फॉर्म। A और B को एंड पे लेंगे, P and Q will be taken symmetrically with respect to A and B. Between A and P there is a 5 microfarad capacitor. Between A and Q 10 microfarad capacitor. Between P and B 10 microfarad capacitor. And between Q and B 20 microfarad capacitor. Between P and Q 6 microfarad. Correct? 6 microfarad आ गया ब्रिज में. We can remove this from the circuit. 5 and 10 in series, नीचे 10 and 20 सर मुझे in एक series. डाउट है, सर मुझे एक डाउट है Follow? सर, P और Q क्यों लिया हमने इधर? हमने जो पहले करा था तो हमने इसको B लिया था। इसको भी A और B तो एंड में है ना, वो तो बीच में वायर लगा था, अभी वायर नहीं है, अभी बीच में कैपेसिटर है. If this would have been just a wire, तो हम उस पॉइंट को A और B लेते. समझ गया ना? यस सर। Now there is a capacitor in between, so none of this point. ना तो ये B के इक्वल है और ना ये A के इक्वल. ओ अच्छा, ओके ओके। उसको हटा दो, कितना आएगा इक्विवेलेंट? 5 and 10 सीरीज में, नीचे 10 and 20 सीरीज में, then both in parallel. Yes. सिंपल है यार, अब जल्दी करो. 5 and 10 series, 10 and 20 in series, and then both in parallel. Correct. What is the equivalent between A and B? Any? सर 10 है आंसर। 10 आंसर. ऊपर 10/3 आ जाएगा, नीचे 20/3 आ जाएगा. 20/3. So answer will be 10 ohm, sorry, 10 microfarad. सर एक बार मुझे डिफरेंस बताना उन दोनों में कि उसमें हमने सेम पॉइंट्स लिए थे और दूसरे में नहीं। एग्जांपल ले लेते हैं. यस, वो पहले वाला सर्किट कुछ ऐसा था. So there was only a connecting wire. Connecting wire का potential difference होता है 0, resistance होता है 0. So this point will become A and this will become B. In this circuit is not a wire, it's a capacitance across it. ओ अच्छा, यस सर। कैपेसिटर का अपना कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एंड दैट इज व्हाई दीस टू पॉइंट्स आर नॉट एट सेम पोटेंशियल. उनको हम डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं, 1 and 2 ले सकते हैं, प्योर क्यों नहीं लेना? तो because of this capacitor now there will be some potential drop between these 2 points. Okay, यस सर, अंडरस्टूड। next form of Wheatstone bridge. वो Third, AP होगा ना, लेकिन पहला वाला जो पार्ट होगा वो A होगा और दूसरा वाले पे जा रहा होगा P। जो A A1। से कनेक्टेड है वो A हो जाएगा, जो B से कनेक्टेड है वो B हो जाएगा. ठीक ठीक है। थर्ड, हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें. और A और B के बीच में बैटरी 6, 3, 12, 3 and 6.
Find the equivalent capacitance between A and B. Calculate करना. Sir, 6. Sir, 6. Yes sir, 6 आ रहा है मेरा भी. सिक्स आ रहा है. सर आंसर 6 आ रहा है. 6 माइक्रोफैराड. सर आप म्यूट हो. सर आप म्यूट हो.
Yes, boss. ये ऊपर वाले का आंसर क्या है? 6 and 3 in series become how much? 2 2 microfarad. and 2 and 4. 4 microfarad. 6. So it will become total 6, right? ऊपर वाले का 6. अब नीचे वाले में जो points हैं वो A और B थोड़ा side में आ गए here. It's looking like similar to the previous circuit, but इसमें हम A को fold करके अगर बाहर ले आए, this we take rotating about 6 microfarad. तो ये वाला 10 और 20 एक तरफ आ जाएगा, this 10 and 20, and 15 and 30 will be on the other side. So 6 microfarad is in the bridge. You understood this? Yes, sir. कितना आएगा इसका आंसर? कितना आएगा इसका आंसर? अच्छा आप लोग मुझे कॉल कर दे, माइक इज ऑन म्यूट. एक्चुअली एक पेरेंट ने कुछ कॉल किया था. यस यस यस. हाँ, व्हाट इज द आंसर क्विकली? ये सिंपल टॉपिक है, ज्यादा टाइम वेट लगा रहे हैं. व्हाट इज द आंसर? 18. कितना है श्रद्धा? Sir, 18 microfarads. 18. ओके बेटा, मेरी आवाज आ रही है ना अभी? Yes, sir. दिनेश? Yes, sir. हाँ, these guys can hear me. Yes. ओके, तो ऐसे कोई डिफरेंट फॉर्म के वीड स्टोन ब्रिज हैं और हम उनको फिर उसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे which one is the bridge. ऊपर आएगा 15 and 10 in Yes, sir. series, नीचे 20 and 18 30. microfarad. 18. Okay. And then there is the extended Wheatstone bridge or extension of Wheatstone bridge for the JE level, BOS level. Yes, extended Wheatstone bridge. ये सारे सर्किट करंट वाले चैप्टर में हम दोबारा नहीं करेंगे. We will directly use this concept. Concept is same. Yeah, extended Wheatstone bridge means if there are the vertical bridges having the same ratio. We have to find the capacitance between A and B. Suppose this is 3 microfarad, 6 microfarad, 6 microfarad, 12 microfarad, 12 microfarad, 24 microfarad, 24 microfarad and 48 microfarad. और ये बीच में कुछ वर्टिकल में लगे हैं, सपोज 5, 10 and 15. So if C1 by C2 is equal to C2 by C3, so is equal to C3 by C4, then all these vertical bridges can be removed. There won't be any potential difference. Right? समझ में आ रहा है ना? ये इसमें बस हमें दोनों तरफ ये चेक करना है that it has to be a balanced Wheatstone across each of the branch. सर हम 5, 10, 15 हटा रहे हैं. हाँ, सर कैसे? देखिए वो सारे Wheatstone ब्रिज हैं. Every part is a Wheatstone bridge. 3 by 6 is 6 by 12. तो ये पहला वाला हट गया. 6 by 12 is 12 by 24. This is also balanced. 12 by 24 and 24 by 48 is also balanced. सर ये इंडिविजुअल Wheatstone bridges हैं.
हाँ मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज को हम 2-3 व्हीटस्टोन ब्रिज को आपस में कनेक्ट करके एक एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं. अच्छा. राइट. तो सारे हट जाएंगे. ऊपर आ जाएगा 3, 6, 12 एंड 24 इन सीरीज. नीचे आ जाएगा 6, 12, 24 एंड 48 इन सीरीज. Three microfarad, 6 microfarad, 12 microfarad, 24 microfarad. This is called extension of Wheatstone bridge. Sir, 24/5 answer. Answer? Yes, sir. Okay, calculate कर लो. ठीक है. This is an extension of Wheatstone bridge. Next. Got it? ये हो गया कुछ स्पेशल बेसिक टाइप के सर्किट. नेक्स्ट इज इनफाइनाइट लैडर सर्किट. नंबर 6 होगा शायद इनफाइनाइट लैडर सर्किट. बेटा ये थोड़ा आराम आराम से इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये आपके लिए नए टाइप के सर्किट है, आपने पहले नहीं किए हुए. तो यू हैव टू थिंक. सब में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. ये इनफाइनाइट लैडर मतलब सर्किट इज गोइंग टिल इंफिनिटी बट सेम स्टेप इज रिपीटेड. जैसे लैडर में स्टेप रिपीटेड होती है, सिमिलरली दिस इज अ सेम स्टेप गोइंग टिल इंफिनिटी. और हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. ऐसा लग सकता है कि इनफाइनाइट सर्किट है सो इसका कैपेसिटेंस भी इनफाइनाइट होना चाहिए बट इट इज नॉट इनफाइनाइट. C to C till going till infinity. We have to find the equivalent capacitance between A and B. Right? क्या लॉजिक लगाते हैं इसमें? Infinity minus 1 is infinity. Infinity minus 1 ऐसा हो गया जैसे हमने किसी ओशन से एक कप वाटर निकाल लिया, something like that. So still it will remain same. Infinity में एक माइनस करोगे फिर भी infinity रहेगा. So इसका जो लॉजिक है सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है? पहले हम A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अज्यूम कर लेते हैं. Equivalent capacitance between A and B is C equivalent, right? अब अगर इन्फिनिटी में से एक स्टेप को कट भी कर देते हैं, हम जंप करके PQ पे, लीव दैट वन स्टेप, जंप टू PQ. हम सर्किट देख रहे हैं PQ से आगे का. दैट सर्किट इज स्टिल सेम. जैसा AB से था वैसे ही PQ से है, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो इन्फिनिटी आएगा. So equivalent capacitance between P and Q is still C equivalent. बेटा ये समझ में आ रहा है ना लॉजिक? इनफाइनाइट स्टेप लैडर में एक स्टेप कट भी कर दें तो भी हम पहुंच जाते हैं उसी सेम सर्किट पे. इन्फिनिटी में से एक कट करने पर भी इन्फिनिटी मिलता है. सो एक स्टेप कट करके अगर हम PQ पे जंप कर जाए तो इट इज सेम एज C equivalent. ये लॉजिक समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सो P में AB में इधर था ये C, दिस इज 2C, और P और Q के आगे हमने उसकी वैल्यू लगा दी. दैट वैल्यू इज C equivalent. एंड नाउ वी विल फाइंड आउट दिस सर्किट. ये दोनों पैरेलल में और इसके साथ C आ गया सीरीज में. दीज टू आर इन पैरेलल C, और ये इधर से आ गया सीरीज में. कितना? सो ये पैरेलल में आएगा 2C plus C equivalent और इसके साथ C सीरीज में. And this will give again the capacitance between A and B.
right? Yes, sir. इसको जब सर्किट सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा फाइनली हमें? We will get C equivalent again, क्योंकि A और B के बीच का C equivalent, it will be C1 C2 divided by C1 plus C2, right? C equivalent into 3C plus C equivalent. C equivalent into C equivalent plus 3C. ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया है ऊपर वाला, इज इक्वल टू 2C स्क्वायर प्लस C इक्विवेलेंट, 2C स्क्वायर प्लस C इंटू C इक्विवेलेंट. आप डायरेक्ट यहाँ पे सीरीज वाला भी लगा सकते हो. ये दोनों का सीरीज होगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, राइट? राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या बनेगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, C इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस 3C इंटू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C स्क्वायर प्लस C इंटू C इक्विवेलेंट. C equivalent square plus 2C into C equivalent minus 2C square is 0. This becomes a quadratic equation. अब इसके रूट निकाल लेते हैं. क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, और ये रूट 12 इज 2 रूट 3 माइनस 2 प्लस माइनस, बट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो दैट बिकम रूट 3 माइनस 1 इंटू C. इसकी हमने रूट निकाल लिया. We are taking only the positive value of discriminant because oral capacitance can never be negative. Right? Yes, sir. Yes, sir. आंसर मैच कर रहा है? Yes, sir. सर एक सेकंड पिछले स्लाइड पे जा सकता हूँ? So C equivalent is equal to 2C plus C equivalent. C1 C2 upon C1 plus C2 सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया. ये दोनों सीरीज में आ नहीं गया ये ना? तो मैं समझ गया था. हाँ. मैं कंफ्यूज था LHS में क्या आएगा. ये AB के इक्वल है ना? This Yes, gives sir. the equivalent capacitance between AB, which is A also pure C Q. equivalent. Okay sir समझ गया. जैसे इनफाइनाइट सम ऑफ GP कैसे निकालते हैं, उसको कैसे डिराइव करते हैं? इनफाइनाइट टर्म ऑफ GP का समेशन कैसे करते हैं? सेम मेथड है वैसे तो. Sn minus 1. Yes. S infinity minus 1. नहीं, उसको डिराइव कैसे करते हैं ये पूछ रहा था. सर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना. आठ से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे, उसको एक स्टेप आगे सब कर देते Yes, हैं ना. sir. Yes, 8 sir. से मल्टीप्लाई करके तो हम ये एक स्टेप छोड़ देते हैं. इसमें भी सेम थिंग, जैसे वहां करते हैं वैसे यहाँ पे करें. ये इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी होगा, सब्ट्रैक्ट कर लो 1 माइनस आर टाइम्स एस इन्फिनिटी. इधर ये सारे कैसे, इधर बाद में जो एक बचेगा. सो जब भी हमें इन्फिनिटी कोई भी सीरीज सॉल्व करनी होती है हम ऐसे ही कुछ मेथड यूज करते हैं. एक स्टेप छोड़ देते हैं, 1 लैडर. सेम इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी. a upon 1 minus r is also derived by the same method, right? Yes, sir. चलो एक अपने आप करके दिखाओ. नेक्स्ट वन, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन A and B. One microfarad, 2 microfarad, 1 microfarad. Same step is repeated till infinity. Calculate the equivalent capacitance between
A and B. Yes. यस, इस सर्किट को हटा देंगे आगे का पूरा, उसके जगह पर सी इक्विवेलेंट, सॉल्व फॉर सी इक्विवेलेंट. यस, सर -1 + √3. -1 + √3 है तो पिछले वाले में भी आया था, सेम आ रहा है. सर मेरा तो यही आ रहा है. प्लीज चेक. यस सर. मेरा तो ±√5 आ रहा है. माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड इसके साथ पैरेलल में लगा लेंगे सी इक्विवेलेंट एंड 1 माइक्रोफैराड. तो ±√5 आ रहा है क्या? पता नहीं बेटा मुझे, तो अभी क्वेश्चन लिखा, चेक कर लेते हैं. ये आ गया 1 माइक्रोफैराड, सी इक्विवेलेंट +2 एंड 1 माइक्रोफैराड. दीज आर इन सीरीज. क्या आ रहा है आंसर विदित? यस, Rishti, 1 upon C equivalent is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So 2 into C equivalent plus 2 plus 1 divided by C equivalent plus 2. 2 C equivalent plus 5. 2 C equivalent plus 5 into C equivalent is equal to C equivalent plus 2. Right? 2C equivalent square plus 4C equivalent minus 2. C equivalent square, please check करें ना calculation. I'm not very sure सही है कि नहीं. Minus B plus minus root B square. मैं तो कुछ और ही आ रहा है. तो मैंने मैथ्स कुछ अलग, एक सेकंड. ये 1 plus 1 हो गया 2. मैं समझ गया. यस, मैं समझ गया कुछ और. 2 into C equivalent plus 4 1 5. 2 C equivalent plus 5 into C equivalent is C equivalent plus 2. क्वेश्चन तो ठीक ही लग रही है. किसी और का भी आ रहा है ऐसा कुछ? किसी और का आंसर आ रहा है? सर ये इक्वेशन आई है. √2 - 1 आ रहा है आंसर मेरा तो. माइक्रोफैराड.
यस, मिल गई गलती विनय? नो सर नहीं मिली। यस सर। आपको गलती मिल गई अपनी? नो सर। अरे मेरी कैलकुलेशन तो सही लग रही है। सर सी इक्विवेलेंट मैंने एक्स एज्यूम किया है उस टोटल को, तो 2 प्लस। सर मैं सॉल्यूशन भेजूँ आपको? अरे किया तो यही होगा ना यार। हम्म, इस पूरे को हटा के सीधे पे सी इक्विवेलेंट के साथ 2 पैरेलल में, सी इक्विवेलेंट प्लस 2 और ऊपर 1 नीचे 1, ये तीनों सीरीज में। यहाँ से तो कुछ चेंज हो नहीं सकता। नहीं सर। 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, उसको मैंने 2 लिख Yes, लिया, sir. प्लस 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। यस सर, यहाँ तक सही समझ में आ गया, यही किया। एलसीएम ले लिया, हम्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये ऊपर बन गया 2 सी इक्विवेलेंट प्लस 5 डिवाइडेड बाय सी इक्विवेलेंट प्लस 2 यस सर। equal to 1 upon C equivalent. So cross multiply. 2C equivalent plus 5 into C सही यही equivalent. आ रहा है, सही है, मेरा तो यही आ रहा है। हाँ यही है कुछ। क्या पड़ा है, चेक करो कैलकुलेशन करके दोनों लोग। राइट, सो अभी 3 केसेस और बचे हैं, तो वन मोर क्लास इट विल टेक, वेडनेसडे क्लास। फ्राइडे को हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कैपेसिटर की डीपीपी सेंड हो गई है या नहीं हुई है, तो अभी हो जाएगी, बन गई है मतलब। So I'll share you the capacitance DPP, solve the questions. ये थोड़े टॉपिक पे ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है because it is very important and it is a common topic in the current electricity chapter. तो थर्ड चैप्टर में हम इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। आगे आंसर सही? Yes, यस sir. सर। यस सर, यस सर। चलो ठीक, ओके देन, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।